वन डायमेंशनल मोशन के न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे आज एंड यू हैव टू अटेंड दीज क्लासेस जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लासेस. Take a register, note down how I'm solving the numericals, and I will give you practice numericals. तो practice numericals को भी आप उसको note करोगे. सिर्फ देखने से कभी numericals नहीं होते. You have to do it yourself. It's more of a practice. तो जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतने ज्यादा आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे होते जाएंगे फिजिक्स में, बिकॉज थ्योरी नॉर्मली हर बच्चे को समझ में आ जाती है, कंसेप्ट समझ आ जाते हैं. द पॉइंट इज द एप्लीकेशन. How to use those formulas which you have derived कि numericals में उसको apply कैसे करना है. So you have to be very clear about the concepts and then start it. So first numerical है, a runner makes one lap around a 200-meter track in time of 25 seconds. You have to find the average speed and average velocity. Runner makes one lap. क्या मैं ऐसे given है? Around a 200-meter track in 25 seconds. तो हमें circumference given है basically. It's a 200-meter track, तो हमें इसकी वैल्यू दी है 2 pi r की. This is given as 200 मीटर. अब हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. लाइक इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम P1 और पूरा कंप्लीट ट्रैक कर ले तो दोबारा P1 पे आ जाता है. तो दैट मींस नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इज 0, कि जहां से शुरू हुआ पूरा राउंड लगा के वहीं आ गया. बिकॉज नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, it implies average velocity will come out to be 0. If person completes one round, we can say average velocity is total displacement upon total time. Because complete round में displacement 0 हो जाएगी. So average velocity will also be 0. But when you have to find the average speed, the person is traveling a distance. उसने 200 मीटर का ट्रैक पूरा किया है. So we say average speed is total distance upon total time. So he has covered 200-meter track in 25 seconds. 8 meter per second. So average speed is 8 meter per second of a person. अगर हम देखें, अगर वो यहां से शुरू होता है, जब तक वो P1 से डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे नहीं आ जाता, जब तक वो P1 से P2 तक नहीं आता, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रही थी. यहां तक अगर पूछा होता तो वैसे इसकी डिस्प्लेसमेंट होती P1 से P2 अगर बतानी है तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी 2r और डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता पाई आर. पर जब वो वापस आया तो डिस्टेंस ट्रैवल तो 2 pi r हो गया एंड डिस्प्लेसमेंट रिड्यूसेस टू 0. Second question is, an object starts from rest with constant acceleration of 8 meter per second square along a straight line. An object starts from rest. हमेशा काइनेमैटिक्स में there are 5 variables. 5 variables मतलब काइनेमैटिक्स में जो variables होते हैं they are U, V, A, S and T. Initial velocity, final velocity, acceleration, displacement और time. हमें काइनेमैटिक्स के हर न्यूमेरिकल में डायरेक्ट या डिस्गाइज्ड फॉर्म में 3 वेरिएबल्स दिए होते हैं. इनमें से 3 की वैल्यू दी होगी, बाकी 2 आप निकाल सकते हो. अब इस क्वेश्चन में डिस्गाइज्ड इंफॉर्मेशन कौन सी है? अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन.
बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दी, हमें पता है काइनेमैटिक्स की जो हमने 3 इक्वेशंस की थी, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is 2s. These equations can only be used if acceleration is constant. So हमें दिया है acceleration constant है, आप इन equations का use कर सकते हो. A part में हमारे को कहा find the speed at the end of 5 seconds. Starts from rest. मतलब हमें initial velocity दी है 0 with a constant acceleration of 8 meter per second square. एक्सेलरेशन भी दी है और हमें बताना है 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी है. मतलब हमें क्या पता है, u पता है, a पता है एंड t पता है. You have to find final velocity v. So using equation, कि हम जो इक्वेशन यूज करेंगे दैट इज v is equals to initial velocity 0 speed at the end of 5 seconds is 40 meter per second. Average speed for 5 second interval. Now second is average speed कितनी है 5 second interval में. तो उसके लिए हमें पहले डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी, बिकॉज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, स्ट्रेट जा रही है ये बॉडी. डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा जैसे s is equals to s. अब हमें u गिवन है 0, टाइम कोई यूज नहीं रहा, प्लस हाफ acceleration is 8 into 5 square. So this comes out to be 4 into distance traveled is 100 meter. Average speed. Average speed is total distance traveled upon total time taken. So 5 सेकेंड में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया. Distance traveled is 100 meter. So average speed comes out to be 5 meter per second. So ये सिंपल काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन देखिए, अगर हमें दिया हो कि एक्सेलरेशन पता है एंड स्पीड पता है तो यू कैन फाइंड द एवरेज वैल्यूज. अब धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाएंगे इसमें. थर्ड क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट. अगेन बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट. इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाइट ऑफ 50 मीटर, कहां से ड्रॉप किया वो भी पता है, ऑन द ग्राउंड. हमारे पास ये बना डायग्राम. बॉल को यहां से ड्रॉप किया, हमने बताना है नीचे कितने टाइम में पहुंचेगी और जब वो ग्राउंड को हिट करेगी तो स्पीड क्या होगी. सो यू ड्रॉप द बॉडी. बॉडी ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट means u is equals to 0. Body is moving under the effect of gravity. तो एक्सेलरेशन पता है हमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं. वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, तो अब डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो. बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी. So you can say acceleration is always
मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं, मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव लेता तो आई विल टेक एक्सेलरेशन एज -9.8। अब बॉडी ए से बी तक आई, इसका मतलब जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 50 मीटर, सेम एज हाइट ऑफ द बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। अगेन तीन वैल्यूज पता है, यू पता है, ए पता है और एस पता है। बिकॉज यू, ए और एस पता है तो वी कैन फाइंड द वेलोसिटी यूजिंग द फॉर्मूला। V square is equal to u square plus 2as. U0 means 980 and V comes out to be under root of 980 meter per second. इसको solve कर भी सकते हो, you can leave it like this also. So it comes out to be around 31.3. और हमने बताना था किस वेलोसिटी से हिट किया और कितना टाइम लगा नीचे आने में। अब जब हमने टाइम निकालना है तो यू कैन यूज सेकेंड इक्वेशन। ये टर्म तो जीरो होगी बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, तो you get t square is equals to 2s by distance traveled is 50, acceleration is 9.8. इसको सॉल्व कर लेना, दिस विल बी अराउंड 3.19 सेकेंड। सो आपको हमेशा तीन वेरिएबल्स दिए होंगे किसी भी फॉर्म में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बाकी तो आप हमेशा कैलकुलेट कर सकते हो। Then you have a stone is thrown straight upwards with a speed of 20 meter per second. It was on its way down 5 meters above where it was thrown. How fast was it going and how long did the trip take? हमने एक स्टोन को थ्रो किया ग्राउंड से विद a speed of 20 मीटर पर सेकेंड upwards, और उसको कैच किया एट अ पॉइंट विच इज 5 मीटर अबव द पॉइंट। से यहां से थ्रो किया था, द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड से। ये बॉडी पहले ऊपर जाएगी, और इसको कैच किया ऑन इट्स वे डाउन। जहां से थ्रो किया था उस पॉइंट से 5 मीटर ऊपर इसको कैच किया जब बॉल नीचे आ रही थी ऊपर जाके। हमने बताना है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और जब वो बी पॉइंट पे पहुंची तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी। ऐसे न्यूमेरिकल्स में हमेशा डायरेक्शन चूज कर लो एक, कि आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है या डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना है, देन स्टिक टू इट। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी उसको पॉजिटिव लेना है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी उसको नेगेटिव लेना है। अपवर्ड पॉजिटिव का मतलब है डाउनवर्ड विल बी नेगेटिव। अब इसमें वेलोसिटी अपवर्ड थी, डिस्प्लेसमेंट जो है
यहाँ पे कैच किया, यहाँ से थ्रो किया था, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड है, और जो ग्रेविटी लग रही है वो डाउनवर्ड्स है, तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज इसे जो भी क्वांटिटी अपवर्ड है उसे पॉजिटिव लेना है और जो डाउनवर्ड है उसे नेगेटिव लेना है। तीन इंफॉर्मेशन फिर से पता है। यू नो द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, you know the acceleration, and you know the displacement. हमें given है body is thrown with initial velocity. This is known. Plus 20. Acceleration हमें पता है throughout motion body ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है. Gravity is always acting downwards. So acceleration is not changing its direction. Acceleration throughout motion is minus 9.8 meter per second, and displacement is 5 मीटर, बिकॉज जहां से थ्रो किया उससे 5 मीटर ऊपर कैच किया है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 5। अगेन इफ वी सी, हमने कहा था 5 क्वांटिटीज होती हैं। वी आर गिवन इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, और बाकी दो वैल्यूज निकालने के लिए क्या है, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट वाज कॉट एंड टाइम टेकन टू रीच दैट पॉइंट। अगर मैं पहले यूज करूं इक्वेशन, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस आर वी डी स्क्वायर। इसमें अगर देखो तो एस पता है, यू पता है और ए पता है, दैट मीन्स सिर्फ टी की वैल्यू नहीं पता, तो टी वी कैन फाइंड। टी निकालना है तो एस इज 5 मीटर, यू टी मीन्स 20 टी, ए इज माइनस 9.8, तो माइनस 4.9 टी स्क्वायर। सो यू कैन सॉल्व दिस, दैट 4.9 टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई है, तो हमारे पास फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी। दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 3.8। अब जब इसको कैच किया इसकी वेलोसिटी की थी, नाउ इट बिकम्स इजियर। हमने ये वैल्यू निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी पता ही है 20, अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और टाइम हमारे पास आ गया जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला। सो दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी, रफली अराउंड माइनस 17.3 मीटर पर सेकेंड। तो अब सिर्फ ये देखो कौन सी क्वांटिटीज गिवन है, कौन सी निकालनी है, तो इन तीन इक्वेशंस में से ही जनरली कोई इक्वेशन लगेगी। SNF is also not very often used in physics numericals, होती है बट नॉर्मली इन तीन इक्वेशंस के साथ काइनेमैटिक्स की आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। Next is a baseball is thrown straight upwards with initial velocity of 35 meter per second. Compute the maximum height reached, time taken, velocity after 30 seconds, and when the ball's height is 100 meter. So you have 4 parts which you have to solve. कि ऊपर थ्रो किया आपको बॉल को, हमने बताना है कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड कितनी होगी, 30 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम कितना लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे, और बॉल टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी, एंड देन द बॉल इज हाइट इज 100 मीटर। तब
Information क्या दी? Ball is thrown upwards with a velocity of 35 meter per second. तो we are given the velocity कि किस velocity से throw किया. Because upward throw किया and ball is moving under gravity, which is constant. बॉल को अपवर्ड थ्रो किया. अगेन अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. जी इज डाउनवर्ड्स. हमने बताना है मैक्सिमम हाइट पे कितनी है और कितना टाइम लगा. पहले से इस पार्ट को देखते हैं. मेरे पास एक बॉडी थी जो स्ट्रेट ऊपर गई और मान लेते हैं ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है. ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है. वो मैंने किया था इसको अपवर्ड विद और ग्रेविटी लग रही थी डाउनवर्ड्स. तीन वैल्यूज कौन सी बताएं? मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है 35. एक्सेलरेशन पता है बॉल इज मूविंग अंडर ग्रेविटी. एक इंफॉर्मेशन हमें पता है बट डिस्गाइज्ड, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा, बट दिया टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉडी एक बार रुकती है एंड देन इट कम्स डाउन. अगर बॉडी को वर्टिकली ऊपर थ्रो करूंगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी होगी 0. तो अगर मैं ए से बी तक लेता हूं, बी इज हाईएस्ट पॉइंट, तो बी पे फाइनल वेलोसिटी 0 है. अब यही पूछा था ये हाइट कितनी है एस और कितना टाइम लगा. मतलब ये तीन वैल्यूज दे दी और ये बाकी की दो निकालनी है, आपको सॉल्व करनी है. सो हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? वी आर गिवन इनिशियल वेलोसिटी और वी आर गिवन फाइनल वेलोसिटी आल्सो एट हाईएस्ट पॉइंट. Because highest point पे body will stop and then comes down. अब upward को positive ले रहे हैं and gravity is acting downwards. The acceleration is V, U और A पता है, S निकालना है तो we can use the equation V square minus U square is 2S. 0 square so 35 square by 19.6. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 35 square is 1225 divided by 19.6. This comes out to be 62.5 meter. टाइम कितना लगा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में? Zero minus initial velocity 35 upon minus 9.8. So this will be approximately 3.6 seconds. अब ये पार्ट इररेलेवेंट हो गया जो हमें डेटा दिया है. 100 मीटर तक तो वो गई नहीं. देयर मे बी सम डिफरेंस इन डाटा. वेलोसिटी आफ्टर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड पे तो वापस ग्राउंड पे आ जाएगी, रुकी होगी, तो इसकी भी जरूरत नहीं है.
तो आप पहले दो पार्ट्स कर सकते थे, बिकॉज मे बी यहाँ पे वेलोसिटी 350 हो तो आंसर आ रहा हो, बट जो हमें डेटा दिया उसके हिसाब से इट नेवर रीच द हाइट ऑफ 100 मीटर बिकॉज 62.5 मीटर हाइट आ रही है और उसको ऊपर जाने में 3.6 सेकेंड्स लगे, तो नीचे आने में भी 3.6 ही लगेंगे, तो 7.2 सेकेंड्स तो उसका टोटल टाइम है, तो 30 सेकेंड्स इज नॉट रेलिवेंट. Next is a blast bag is dropped from a balloon that is 300 meter above the ground and rising at 13 meter per second. इस क्वेश्चन में दिया है कि ब्लास्ट बैग जिसको ड्रॉप किया था उसको ग्राउंड से नहीं किया, वो रेस्ट पे नहीं था, है तो ड्रॉप्ड, बट इसको मूविंग बॉडी से ड्रॉप किया. Whenever you drop a body from a moving body, initial velocity is same as that of the moving body. कि अगर जैसे हॉट एयर बलून है वो ऊपर जा रहा है, हमें दिया वो 300 मीटर की हाइट पे है और 13 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था, उसमें से एक बैग ड्रॉप किया, तो बैग को किया तो ड्रॉप है पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही है जो बलून की थी. तो अगर वो 13 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी 13 ही है और उसको 300 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है. तो हमने बताना है कितनी हाइट तक जाएगा और उसकी पोजीशन और वेलोसिटी क्या होगी 5 सेकेंड्स के बाद, और ग्राउंड को कब हिट करेगा. तो तीन चीजें अलग अलग. हमें दिया एक बॉडी को हमने 300 मीटर की हाइट से यहां से ड्रॉप किया और ये बॉडी ऊपर जा रही थी 13 मीटर पर सेकेंड के साथ. हमने बताना है कितनी ऊपर तक जा सकती है. तब यहां से अगर ये शुरू होती है 13 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही थी, तो इसे इट मूव्स अप अ सर्टेन हाइट, it moves up a certain height and then it comes down. मान लो यहां तक गई, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया, यहां से ड्रॉप किया था, कितनी हाइट तक जाएगी h. इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हमें ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी दी है 13 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मूविंग बॉडी से ड्रॉप किया तो जो उसकी वेलोसिटी है वही इनिशियल वेलोसिटी होगी. हाईएस्ट पॉइंट पे एक बारी जाके रुकेगी, तो हाईएस्ट पॉइंट की हाइट निकालनी है, तो वी कैन से फाइनल वेलोसिटी इज 0. इट्स मूविंग अंडर ग्रेविटी. एक्सेलरेशन इज, बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो इट्स -g. v u और a पता है, s निकाल सकते हो. It's -169 upon -19.6. This will give you the maximum height. This comes out to be roughly 8.6 meter. 300 मीटर से फेंका था, 8.6 और ऊपर गई, तो 300 8.6. ये तो ए पार्ट हो गया. बी पार्ट में हमें पूछा है पोजीशन एंड वेलोसिटी 5 सेकेंड आफ्टर इट इज रिलीज्ड. अब हमें यू तो सेम ही दिए, पर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम नहीं बताना, तो हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, हमें टी पता है और हमें ए पता है बिकॉज ग्रेविटी तो स्टिल इज सेम.
तो अगर मेरे को बताना है वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 5 सेकेंड्स, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT. मतलब 13 माइनस 49. हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, वेलोसिटी -36 आ रही है, मीन दैट्स गोइंग डाउन, नीचे मूव कर रही है बॉडी. और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. u इज 13, 5 सेकेंड्स के बाद बतानी है, प्लस हाफ 65 माइनस 4.9 इंटू 25. सो इसकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, अगर हम 5 लेते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 65 अराउंड माइनस 60. एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 4.9 इंटू 25. So this comes out to be 57.5 minus 57.5. मतलब डाउनवर्ड. हमने इसको यहां से थ्रो किया था, 5 सेकेंड के बाद ये यहां पे आ गई, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. मतलब ये जो वैल्यू है इसको मैं अगर ओरिजिन मानता हूं तो 5 सेकेंड्स के बाद बॉडी इधर है, वे y इज इक्वल्स टू, और नीचे जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड. अगर हमने बताना है ग्राउंड को कब हिट किया, सी पार्ट, अगर यहां से इसको ड्रॉप किया था, ऊपर गई और नीचे आई, ग्राउंड को कब हिट किया. अगर ये ग्राउंड को हिट करती है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज, क्योंकि वो डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव. एक्सेलरेशन इज अगेन -9.8. इनिशियल वेलोसिटी इज 13 मीटर पर सेकेंड. अगेन 3 वैल्यूज दी हैं, तो ut प्लस हाफ AD स्क्वायर means -300 is equals to 13t minus 4.9 t square. So t comes out to be so this you can solve. This will give you the time when it hits the ground. So time when it hits the ground के लिए हमने displacement जो लेनी है that we have to take as -300.